السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ایم کے ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، موسیٰ انکلیو، ایمسن ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام، صرف ایک نہیں 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز، ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت، 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس، اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈینسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈینسی فیز 2، بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنس پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈینسی فیز 2، where life comes alive۔ تلنگانہ اسمبلی کے منحرف ارکان کے خلاف 3 ماہ کے اندر اسپیکر کارروائی کرے، ہائی کورٹ ڈویژن بینچ کا فیصلہ منسوخ، سپریم کورٹ کی ہدایت۔ دس اسمبلی حلقوں میں ضمنی انتخابات کے لیے پارٹی کے کارکن تیار رہیں، BRS پارٹی کی پہلی کامیابی، KTR کا ٹویٹ۔ کیا مودی حکومت اور مہاراشٹرا حکومت مالیگاؤں کیس سے متعلق NIA عدالت کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع ہوگی؟ صدر مجلس بیرسٹر اویسی کا سوال۔ اور گولکنڈہ حدود میں نظر آنے والا چیتا پکڑا گیا، عوام میں راحت۔
और अब पेश हैं खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को तेलंगाना हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले को मनसूख करते हुए हुक्म दिया कि कांग्रेस में शामिल होने वाले बीआरएस के 10 अरकान असम्बली की नाअहली से मुताल्लिक दरख्वास्तों पर स्पीकर 3 माह के अंदर फैसला करें। ये दरख्वास्तें बीआरएस कायदीन केटी रामाराव, पी कौशिक रेड्डी और के.पी. विवेकानंद ने दायर की थीं। इन दरख्वास्तों में असेंबली स्पीकर से नाअहली की दरख्वास्तों पर कार्रवाई की अपील की गई थी। चीफ जस्टिस बी.आर. गौई ने कहा कि सियासी वफादारी बदलने के वाकयात जमहूरियत के लिए खतरा हैं और स्पीकर जब 10वें शेड्यूल के तहत फैसला करते हैं तो वो आईनी तहफ़्फ़ुज़ के हामिल नहीं होते बल्कि एक ट्रिब्यूनल की हैसियत से काम करते हैं जिसके फैसले अदालती जांच के दायरे में आते हैं। अदालत ने वाज़ेह किया कि हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के हुक्म में बिलावजह मदाखलत की, हालांकि इस हुक्म में वक्त मुकर्रर करने जैसी कोई हिदायत भी शामिल नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी रुकन असम्बली को कार्रवाई में ताखीर का मौका न दिया जाए और अगर ऐसा हुआ तो स्पीकर इसके खिलाफ मनफी नतीजा अख्ज़ कर सकते हैं। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि 10 असम्बली हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए तैयार हो जाएं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि हक की जीत हुई है। उन्होंने तेलंगाना में इन्हिराफ की सियासत में मुलव्विस 10 अरकान असम्बली पर 3 महीने के अंदर स्पीकर को कार्रवाई करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी इस फैसले का खैर मकदम करती है और जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करने पर इजहार तशक्कुर किया। केटीआर ने कहा कि राहुल गांधी जो 5 न्याय बनाएंगे इस पर कायम रहें। कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए पार्टी तब्दील की है, उनकी तहकीकात की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि 10 असम्बली हलकों के अरकान असम्बली के खिलाफ नाअहल करार देने का फैसला 3 माह के अंदर स्पीकर लें। उन्होंने कहा कि पार्टी कारकुन ज़िमनी इंतखाबात के लिए तैयार हो जाएं। तेलंगाना कांग्रेस के रुकन कौंसिल ए दियाकर ने कहा केसीआर असम्बली को नहीं आ रहे हैं। क्या यह दस्तूर का मजाक नहीं है? मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि स्पीकर को केसीआर के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि माजी में कांग्रेस पार्टी से अपोजिशन का ओहदा भी छीन लिया गया था। दलित वजीर आला तो दूर की बात है, दलित को सीएलपी लीडर तक रहने नहीं दिया गया था। दूसरी जमातों से कायदीन को लेकर वजीर का ओहदा दिया गया। उन्होंने कहा कि सीमा आंध्रा मीडिया के जरिए खौफजदा किया गया। उन्होंने कहा कि फैसिस्ट सियासत के खात्मे के लिए कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आई है। उन्होंने कहा कि हर नजरिए की पार्टी को जिंदा रखने के लिए कांग्रेस ने सीपीआई को टिकट देकर कामयाब बनाया। तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने कहा कि मालेगांव केस में हिंदू समाज को दहशतगर्द बताने की कोशिश की थी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मालेगांव केस में कांग्रेस की साजिश छुपी थी। सोनिया गांधी मुल्क की आवाम से माफी मांगें। मालेगांव फैसले का हम खैर मकदम करते हैं जो कांग्रेस के मुंह पर तमाचा है। इन्हिराफ सियासत पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पैदल दौरा कर रही है या धोखा दे रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक अवाम से किए गए वादे और डिक्लेरेशन पर व्हाइट पेपर जारी करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को पैदल दौरा करने का अखलाकी हक नहीं है। बीआरएस पार्टी के रुकन असम्बली के.पी. विवेकानंद ने कहा कि इन्हिराफ अरकान असम्बली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला रेवंत रेड्डी के मुंह पर तमाचा है। उन्होंने कहा कि 5 न्याय में से ये एक है। दिल्ली में राहुल गांधी से रेवंत रेड्डी एक बात करते हैं और गली में एक बात करते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहकीकात के लिए ताउन नहीं करेंगे तो स्पीकर को कार्रवाई करनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा फैसला बीआरएस पार्टी की पहली कामयाबी है। इस कामयाबी को जारी रखेंगे, कांग्रेस पार्टी सबक हासिल करे और सही काम करे। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मालेगांव बम धमाका केस के फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। सदर मजलिस का कहना था कि मालेगांव धमाके में 6 नमाजी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए थे, मगर तमाम मुलजमीन को बरी कर दिया गया। ये मजहब की बुनियाद पर दहशतगर्दी थी, लेकिन जानबूझकर नाक़िस तहकीकात की गईं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि साबिक प्रोसिक्यूटर ने खुद एतराफ़ किया था कि एनआईए ने मुलजमीन के साथ नरमी बरतने को कहा। याद रखिए, मुलजमीन में से एक मुलजिमा बीजेपी की रुकने पार्लियामेंट रह चुकी हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या हुकूमत इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी, जिस तरह मुंबई ट्रेन धमाके के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, और क्या एनआईए और एटीएस को जवाबदार ठहराया जाएगा या फिर ये इंसाफ सिर्फ मखसूस तबके तक महदूद है। पहले मुंबई एटीएस ने, जिसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे हेमंत करकरे साहब, शहीद हेमंत करकरे, और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन गया एनआईए के पास। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत गलत हुआ। दूसरी बात यह है कि 17 साल के बाद कोर्ट ने तमाम आरोपियों को एक्विट कर दिया। हमारा पहला सवाल मोदी सरकार से और महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार से है कि जिस तरह वो लोग अपनी बेचैनी का इजहार किए थे और ऐसा लग रहा था कि उनके जिस्म में कोई बहुत बड़ी चीज़ छुप चुकी है, वो सुप्रीम कोर्ट भागकर मुंबई के जो ट्रेन ब्लास्ट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भागे थे, सुप्रीम कोर्ट को गए, वहां पर जाकर उन्होंने उस जजमेंट पर स्टे लिया। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या टेररिज्म के ऊपर इनकी हिपोक्रेसी होगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे? दूसरा यह है कि मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स वहां पर इस्तेमाल हुआ, ये एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा। अब ये मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहां से आया? भाई 2006 का बॉम्ब ब्लास्ट मालेगांव का 2 हुए, 2006, 2008। 2006 में आपने मुसलमानों को पकड़कर खूब पीटा, मारा, वो डिस्चार्ज हो गए। किसने किया वो? अब 2008 का ब्लास्ट फिर किसने किया? और तीसरा ये याद रखिए कि अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की मोटरसाइकिल पर ही वो बॉम्ब रखा गया आरडीएक्स मिलिट्री ग्रेड, और एनआईए ने कहा कि उनके पास नहीं था, वो 2 लोगों के पास था, रामजी कलसांगरे जो अभी तक गायब हैं, तो फिर ये हमको समझ में नहीं आ रहा। फिर मुंबई में जो ब्लास्ट हुआ था 1991 में, उसमें भी एक महिला के नाम पर एक वो गाड़ी थी, क्या बोलते हैं आपकी, मारुति वैन थी, जिसको ना चलाने आता था, उसको आपने कन्विक्शन दे दिया। ये हमको समझ में नहीं आ रहा। 2016 में रोहिणी सालियान ने क्या कहा था? मैंने नहीं कहा कि उन पर प्रेशर डाला गया कि वो सॉफ्ट जाए उसके ऊपर। फिर 2017 में चार्जशीट में एनआईए डालती है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम नहीं था उसमें। तो ये सब जो चीजें हो रही है, इसका अकाउंटेबल कौन है? समझौता ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मक्का मस्जिद का ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, 2006 मालेगांव किसने किया नहीं मालूम, 2008 किसने किया नहीं मालूम। तो फिर कौन है? अगर वाकई में जिन लोगों ने ये किया है वो तो खुले फिर रहे हैं। फिर हम मोटा मोटा सवाल यही कर रहे हैं कि क्या मोदी सरकार, क्या महाराष्ट्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर इस जजमेंट पर स्टे लगाएगी नहीं लगाएगी? आतंकवाद से मुकाबला करने का दोहरा रवैया नहीं हो सकता, और जो मरने वालों का क्लोजर नहीं हुआ, चाहे वो मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हो, चाहे समझौता हो, मालेगांव 2006 हो, मालेगांव 2008 हो, मक्का मस्जिद हो, अजमेर ब्लास्ट हो, इसका क्लोजर नहीं हुआ पीड़ित परिवार के लिए जो अपने रिश्तेदारों को, अपने लव वंस को खोए हैं। एनआईए है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है ना, पापा जी को क्यों भूल जा रहे आप लोग? एनआईए भी तो है। एनआईए किसके अंडर काम करती है? एनआईए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है।
रोहिणी सालियान का स्टेटमेंट है, मिलिट्री ग्रेड अगर आरडीएक्स इस्तेमाल हो रहा है तो भाई साहब ये कहां से आया, ये बड़ा सवाल है। एक बात सुनिए, अच्छा तो इसका मतलब आप हेमंत करकरे को गाली दे रहे हैं? बोलिए खुल के आप लोग, जिसने अपनी जान इस देश के लिए दे दी, बोलिए हेमंत करकरे झूठा था। अरे आप एक बात समझिए कि हमारी एनआईए एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, उनका अगर इस तरह का रवैया रहेगा तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या असर पड़ेगा, इसको आपको जानना चाहिए। आपको जानना चाहिए इन द कंटेक्स्ट ऑफ पुलवामा ऑल्सो, सब चीज आपको देखना पड़ेगा। महात्मा गांधी को मारने वाला कौन था? चीनी था, है? राजीव गांधी को मारने वाला कौन था? इंदिरा गांधी को किसने मारा? सब छोड़िए ना, आप लोग बहुत हम बोल सकते। ये हम आपको कह रहे हैं कि क्या भारत सरकार, मोदी सरकार, क्या महाराष्ट्र की सरकार, वो जो लोग मरे हैं, चाहे वो ट्रेन ब्लास्ट में हो, आपने चले गए सुप्रीम कोर्ट जाकर रुका दिया आपने, इनका क्या करेंगे? मालेगांव 2006 किसने किया, 2008 किसने किया? देखिए हम सच बात कह रहे थे, रहमत बरस रही है। थैंक यू। हुकूमत ने हैदराबाद में वाक़े अमेरिकी कौंसल खाने की खदमात से इस्तेफादा करने वालों की सहूलत के लिए 1.5 करोड़ रुपए के मसारिफ से तेलंगाना स्टेट कौंसलर वेटिंग एरिया की तामीर की। अमेरिकी कौंसल जनरल जेनिफर लॉर्सन की मौजूदगी में वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व सनतें श्रीधर बाबू ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर ने कहा कि अमेरिकी कौंसल खाने की खदमात से इस्तेफादा करने हर दिन 3000 से ज़ायद अफराद यहाँ आते हैं, लेकिन इंतज़ार गाह में दरकार सहूलतें न होने से मुश्किलात पेश आ रही हैं। हैदराबाद में कई अमेरिकी कंपनियों और इदारों के दफातर कायम हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ तिजारती और दीगर अगराज के लिए लोग कौंसल खाने से रुजू होते हैं। उनकी ज़रूरियात को मलहूज़ रखते हुए हुकूमत ने ये इंतज़ार गाह तामीर की है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात मुस्तहकम हैं। इसके साथ तिजारती हिस्सेदारी है। फार्मा, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के शोबे में 38% तिजारत हो रही है। अमेरिकी कंपनीज जैसे गूगल, अमेजॉन, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट ने इस साल जनवरी में 31,500 करोड़ रुपए की तेलंगाना में सरमायाकारी की है, जिससे 30,000 नई मुलाजिमतों के मौके मैसर हुए हैं। उन्होंने तेलंगाना के साथ अमेरिकी रिश्तों को मजीद इस्तेहकाम देने की हुकूमत की कोशिशों का भी इस मौके पर तस्करा किया। कालेश्वरम कमीशन के सदर पीसी घोष ने कमीशन की रिपोर्ट को हुकूमत के हवाले कर दिया है। जुमेरात की शाम को हुकूमत को रिपोर्ट पेश की। पीसी घोष 2 अगस्त को आबाई मुकाम कोलकाता रवाना हो जाएंगे। हुकूमत की जानिब से मजीद 3 दिन की तोसी करने की कोशिश पर पीसी घोष ने इनकार कर दिया। 1000 सफ़हात पर मुश्तमिल कालेश्वरम कमीशन की रिपोर्ट को आबपाशी सेक्रेटरी राहुल बोजा के हवाले किया गया। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि असम्बली इंतखाबात के वक्त कांग्रेस ने कई वादे किए थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अक़लियतों से किए गए वादों को भूल गई। उन्होंने कहा कि केसीआर ने नायब वज़ीर आला का ओहदा दिया, रेवंत रेड्डी ने एक अक़लियत को वजीर का ओहदा नहीं दिया। अक़लियतों के मख्तस बजट को खर्च नहीं किया गया। अक़लियतों के लिए सब प्लान लाने का वादा किया था, लेकिन अब तक अमल नहीं किया गया। इमाम और मौज़नीन को दिए जाने वाला मुशाहरा नहीं दिया जा रहा है। अब तनख्वाह भी बराबर नहीं दे रहे हैं। अक़लियती अक़ामती स्कूल्स में सहूलतों का फुक़दान है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत में अक़लियतों पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मजालिस मुक़ामी इंतख़ाबात में अवाम ही सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि KTR जितने सेक्युलर लीडर हैं कोई और नहीं है। हज 2026 के लिए दरख्वास्तों के अदकाल की तारीख में 7 अगस्त 2025 तक की तोसी की गई है। रियासती हज कमेटी के सदर नशीन खुसरो पाशा अफजल बियाबानी की दरख्वास्त पर मरकजी वजारत अक़लियती उमूर की जानिब से तारीख में तोसी की गई है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रियासती हज कमेटी सज्जाद अली ने बताया कि हज 2026 के लिए अब तक 8000 दरख्वास्तें दाखिल की जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि दरख्वास्तों के अदकाल की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। सदर नशीन खुसरो पाशा की नुमाइंदगी पर 7 अगस्त तक तोसी की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी पैदा हुई है, जिसके असर से आइंदा 2 दिनों तक तेलंगाना में औसत से शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है।
اس کے ساتھ ساتھ بحر عرب میں بھی ہوا کا گہراؤ پیدا ہونے کا امکان ہے۔ ان حالات کے پیش نظر حیدرآباد، ورنگل، کریم نگر، عادل آباد، یدادری بھونگیر، محبوب نگر، کمرمبھیم آصف آباد اور رنگا ریڈی اضلاع میں موسلادھار بارش کا اندیشہ ہے۔ محکمہ موسمیات نے عوام کو خبردار کرتے ہوئے الرٹ جاری کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق ان دنوں تیز ہوائیں 40 تا 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل سکتی ہیں۔ صحت کے ماہرین نے مشورہ دیا ہے کہ اچانک تیز ہوائیں اور موسم کی تبدیلی کی وجہ سے لوگ بیمار پڑ سکتے ہیں، اس لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں حلقہ ملک پیٹ میں بنیادی مسائل کی یکسوئی کے ساتھ ساتھ عوامی صحت کے لیے بھی رکن اسمبلی احمد بلالہ امتن گوش مصروف ہیں۔ ملک پیٹ کے تمام ڈویژنز میں مسلسل مفت ہیلتھ کیمپ منعقد کرتے ہوئے ماہر ڈاکٹرز کی نگرانی میں درکار معائنے کیے جا رہے ہیں۔ عوام کی بڑی تعداد ان ہیلتھ کیمپ سے استفادہ کر رہی ہے۔ اس سلسلے کے تحت جمعرات کو قدیم ملک پیٹ ڈویژن میں مسجد نور کے پاس ایک میگا مفت ہیلتھ کیمپ منعقد کیا گیا۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے اس کیمپ کا افتتاح انجام دیا۔ ڈپٹی ڈی ایم ایچ او برجس النساء نے بتایا کہ یونانی، ہومیوپیتھی، ایلوپیتھی کے ڈاکٹرز نے مریضوں کے معائنے کیے اور ان میں مفت دوائیں تقسیم کیں۔ ماہر امراض چشم نے بھی آنکھوں کی بیماری سے متاثرہ افراد کے معائنے کیے۔ جذام کے مریضوں، موسمی بخار سے متعلق شعور بیدار کیا گیا اور اسکولی طلباء کے بھی معائنے کیے گئے۔ قدیم ملک پیٹ ڈویژن کے علاوہ آس پاس کے ڈویژنز کے عوام کی بھی بڑی تعداد نے اس ہیلتھ کیمپ سے استفادہ کیا۔ متعلقہ کارپوریٹر سیف الدین شفیع کے علاوہ ڈاکٹرز، طبی عملہ اور مقامی مجلسی کارکن بھی اس موقع پر موجود تھے۔ مقامی عوام نے رکن اسمبلی احمد بلالہ سے اظہار تشکر کیا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں رکن اسمبلی یاقوت پورہ جعفر حسین معراج نے یاقوت پورہ میں ترقیاتی کاموں کے لیے سرگرم ہیں۔ جمعرات کو رکن اسمبلی نے کرماگوڑا ڈویژن میں سبزی مارکیٹ میں سی سی روڈ کے کاموں کا معائنہ کیا۔ 20.5 لاکھ روپے کے مصارف سے سڑک کے کام یہاں کیے جا رہے ہیں۔ سری نگر کالونی میں بچھائی جا رہی سی سی روڈ کے کام کا معائنہ کیا گیا۔ رکن اسمبلی نے عہدیداروں کو کاموں کی جلد تکمیل پر زور دیا۔ نمائندہ کارپوریٹر شفاعت علی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی چار مینار میر ذوالفقار علی نے پتھر گھٹی ڈویژن کی مختلف علاقے جات میر عالم منڈی، غوث نگر، الفا ہاسپٹل، کوٹلے عالیجہ، بھاجی گلی، دودھ خانہ گلی کے احاطہ کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے میر ذوالفقار علی نے بتایا کہ میر عالم منڈی میں سیوریج لائن کا کام چل رہا ہے، جس کی وجہ سے پینے کے پانی کی لائن میں آلودہ پانی شامل ہو گیا ہے، جس سے بعض لائنوں سے آلودہ پانی سربراہ ہو رہا ہے۔ اس پر کام جاری ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ عنقریب یہ کام مکمل ہو جائے گا۔ اس موقع پر محکمہ بلدیہ آبرسانی کے عہدیداروں کے علاوہ اراکین بلدیہ سہیل محمود قادری، نسرین سلطانہ اور مجلس کے ابتدائی صدور اور معتمدین موجود تھے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی نمائندگی پر رکن اسمبلی یاقوت پورہ جعفر حسین معراج نے رکن کونسل مرزا رحمت بیگ کے ہمراہ دبیر پورہ ڈویژن کے ناگا باولی اور شیخ فیض کی کمان کے سڑک کی توسیعی پروجیکٹ کے متاثرین میں چیکس کی تقسیم عمل میں لائی۔ مجلسی ارکان اسمبلی نے ناگا باولی کے متاثرین میں 2,60,90,000 روپے کے 18 چیکس تقسیم کیے، جبکہ شیخ فیض کی کمان کے متاثرین میں 54 لاکھ روپے کے 2 چیکس تقسیم کیے۔ اس موقع پر دبیر پورہ کارپوریٹر علمدار والا جاہی، مجلس کی ابتدائی صدور و معتمدین سمیت سڑک کے توسیع پروجیکٹ کے متاثرہ جائیداد مالکان بھی موجود تھے۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن کونسل مرزا رحمت بیگ نے وزیر اطلاعات اور ٹیکنالوجی و کمیونیکیشن انڈسٹریز ڈی سریدر بابو سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے بشمول ترقیاتی کاموں کے دیگر امور پر بھی بات چیت کی، جس میں جلال بابا نگر کے علاقے کی خستہ سڑکوں کی مرمت بھی شامل ہے۔ واضح ہے کہ رہائشی علاقے میں وہاں کئی انڈسٹریز ہیں، جس سے مکینوں کے لیے آلودگی پیدا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے صدر مجلس کا ایک مکتوب بھی حوالے کیا۔ اس موقع پر رکن بلدیہ نواز الدین احمد کے علاوہ مجلس کی ابتدائی صدور اور معتمدین موجود تھے۔ بعد میں مرزا رحمت بیگ نے گوشہ محل میں اندرا پریا درشنی گورنمنٹ جونیئر کالج کی پرنسپال ڈاکٹر چندرا مکھرجی سے بھی ملاقات کی اور مختلف امور پر بات کی۔ مرزا رحمت بیگ نے ایک جائزہ اجلاس میں کالج کے مسائل دریافت کیے، جبکہ 3.5 کروڑ روپے کے ایم پی فنڈ سے کالج کی نئی بلڈنگ اور آڈیٹوریم
तामीर किया जा रहा है। इसके कामों की पेशरफ्त के बारे में भी बात की गई। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने हल्का असम्बली राजेंद्र नगर की मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने सुलेमान नगर और शास्त्रीपुरम के इलाके जात हसन नगर, जबल नूर, चार गली, मदीना मस्जिद, हसन नगर और नूरानी मस्जिद और उसके अतराफ अकनाफ के इलाकों का दौरा किया। दौरे में उनके हमराह महकमे बरक़ी और बरसानी और बलदिया के ओहदेदार भी मौजूद थे। उन्होंने तरक्याती कामों का जायजा लेने के अलावा मुकामी अफराद के मसाइल की समाअत भी की और एकसुई के लिए मुतल्लिका ओहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर मोतमदीन मौजूद थे। हैदराबाद की मजाफात से चीते को पकड़ा गया। मुख्तलिफ इलाकों गंडीपेट, मोइनाबाद और शेखपेट मंडल में अवाम को कई दिनों से ये चीता खौफजदा कर रहा था, जो आखिरकार महकमे जंगलात के जाल में फंस गया। गुज़िश्ता तकरीबन 20 दिनों से ये मुख्तलिफ मकामात पर घूम रहा था। ये चीता मंजरला फॉरेस्ट टेक पार्क में नस्ब करदा खुसूसी पिंजरे में पकड़ा गया। पिंजरे में इसके दाखिल होते ही मुकामी अवाम ने सुकून और राहत की सांस ली। महकमे जंगलात के ओहदेदारान ने बताया कि चीते को नेहरू जू पार्क मुंतकिल किया गया है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, एमके टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना असेंबली के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ 3 माह के अंदर स्पीकर कार्रवाई करे। हाईकोर्ट डिवीजन बेंच का फैसला मंसूख, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत।
10 اسمبلی حلقوں میں ضمنی انتخابات کے لیے پارٹی کے کارکن تیار رہیں، BRS پارٹی کی پہلی کامیابی، KTR کا ٹویٹ۔ کیا مودی حکومت اور مہاراشٹرا حکومت مالیگاؤں کیس سے متعلق NIA عدالت کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع ہوگی؟ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کا سوال۔ اور گولکنڈہ حدود میں نظر آنے والا چیتا پکڑا گیا، عوام میں راحت۔ اور ناظرین کے ساتھ 4TV خبر نامے کا یہیں پر اختتام ہونا چاہتا ہے۔ مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ دیکھتے رہیں 4TV۔ خدا حافظ۔